Hello, my name is Helen Tarokeach. I'm here with our interpreter, Soumya Gupta, and we're here today to have a conversation about deportation defense and planning ahead. I'm a North Carolina board certified immigration law specialist. I'm an attorney based in Wilmington, North Carolina. And of course, things are changing every day. But as of March of 2025, we're going to try to answer some of the top 10 questions that we get. Of course, this is just general information. It is not case specific legal advice, which is why we have a law office that people can contact to pursue a consultation to get advice specific to their case. नमस्ते, मेरा नाम सौम्या गुप्ता है और जैसा हेलन ने आपको बताया कि मैं आज हेलन के साथ बात करूंगी इस विषय पर कि डिपोर्टेशन डिफेंस और उसके लिए हम कैसे प्लान कर सकते हैं। ये कुछ साधारण सवाल होंगे जो सभी के मन में आते हैं। तो आज हम टॉप 10 क्वेश्चंस मार्च 2025 में आपके सामने इस वीडियो को लेके प्रस्तुत हैं। Awesome. So, one of the biggest ones we get is, should I still even try to file an immigration case with immigration, or would it just be worse if they know who I am and where I live? And I think that's a really tough question. But when I am advising people, normally we look at doing a detailed consultation and filing an application with immigration as one of the best defenses to deportation. I also think that because cases can take time to prepare, that it's very important to take the time to prepare them before an emergency happens. So if somebody's never done anything or even begun to prepare a case and then they're suddenly detained, then they're quite unprepared and may not be able to find representation in filing an application. So that's really important to note. And then also, yes, when we file applications with immigration, things like addresses and background checks do need to be disclosed. Often our office is listed as the safe address on an application. तो जो पहला सवाल है सबसे ज़्यादा जो परेशान करता है वो है कि क्या मुझे सरकार के साथ यूएससीआईएस के साथ केस फाइल करना चाहिए या फिर ये स्थिति खराब हो जाएगी अगर सरकार को ये पता चलेगा कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ रहता हूँ। तो उसका जो जवाब हमें हेलन जी ने दिया अभी बहुत साधारण भाषा में कि आपको ज़रूर अपना केस फाइल करना चाहिए। हालाँकि आप कहाँ रहते हैं, आपका बैकग्राउंड चेक और आपके जो ज़रूरी दस्तावेज़ हैं, जिसमें कि आपकी जानकारी है, आपके रहने के बारे में, आपके एड्रेस के बारे में, वो हमें ज़रूर देनी होती है। लेकिन आपका जो एक सेफ एड्रेस है, जिसका मतलब है कि जहाँ पर आपकी जानकारी सुरक्षित रहती है, वो हमेशा हमारा ऑफ़िस होता है। जिसका मतलब है कि हमारे ऑफ़िस का एड्रेस आपके लिए एक सुरक्षित एड्रेस होता है, जिसको कि हम आपके सरकारी दस्तावेज़ों में लिखते हैं। So another question is, what are my chances of getting approved under the Trump administration? And I think that's a really hard question to answer. However, we have been through this before. We filed many cases under the previous Trump administration. I did find that they were often harder to win or took longer to be decided. Every now and then, things moved through very quickly to a decision. I had lost some cases, had to appeal some cases to eventually win those cases. So I think that, again, a consultation and individualized advice are the best way to know what your chances are. But I don't want people to think that there's no opportunity for them under this administration. And we have already been receiving many favorable decisions for cases that we began a very long time ago. सो जो दूसरा मुख्य सवाल है कि ट्रंप के प्रशासन में कितने ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा या आपके पास आपका केस अच्छा होगा? ये एक सवाल का जवाब है कि ट्रंप के प्रशासन में अभी तक हमारे पास जो नतीजे आए हैं, वो काफ़ी अच्छे आए हैं और हमारे पास काफ़ी सारे केसेज़ में अप्रूवल आए हैं, जो कि हमने काफ़ी समय पहले फ़ाइल किए थे। हालाँकि इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि किसी के भी प्रशासन में कोई भी केस किस तरह से आगे चलेगा। तो यहाँ पर ये आपका जानना ज़रूरी है कि अगर ऐसा कुछ भी आता है जो कि आपके फ़ेवर में नहीं आता, तो हमें उसके लिए फिर दूसरे रास्ते लेने पड़ सकते हैं। जैसे कि डिनायल आए तो हमें अपील करनी पड़ सकती है या फिर कोई दूसरा रास्ता जो भी हमें केस बाय केस उस केस की स्ट्रैटेजी के हिसाब से हमें सलाह मिलती है अपने ऑफ़िस में हमारी टीम से।
Helen, you are on mute. Sorry. So again, related to the chances of getting approved under the Trump administration, a lot of that comes down to planning ahead, starting work on any case you may be eligible for now before we have some type of an emergency. And also, the more prepared you are, the higher quality case you're going to have. In an emergency, I can only gather so many documents or so much evidence and then try to apply very quickly for somebody. Those are very hard to do. In other situations where we've had plenty of time to develop a case at the highest quality level, then that's going to end up increasing your odds or improving your chances of ultimately getting an approval in the application. Also, trying to avoid things like a request for additional evidence or a notice of intent to deny all comes down to preparation and the quality of the application. थैंक यू हेलन। सो यहाँ एक बात को मद्देनज़र रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है और वो ये है कि किसी भी केस के लिए हमें बहुत सारी तैयारी करनी होती है। आपके केस के ऊपर ये निर्भर करता है कि उसमें क्या-क्या चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी और इसलिए उसकी प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो प्लानिंग और स्ट्रैटेजी ये 2 शब्द हैं जो यहाँ पर हम बार-बार एम्फसाइज़ करेंगे, जिसका मतलब ये है कि उस पर हम ज़्यादा ज़ोर देंगे, जिससे कि ये बात आपको समझ में आ जाए कि अगर आपने हमें कोई चीज़ आज बताई है या आज आप केस शुरू कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें तैयारी करनी होती है, उसके सारे केस के आधार देखने होते हैं, उसकी आमूल-चूल रचना हमें बनानी पड़ती है और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम बहुत सारा समय उसके लिए लगाएँ। जिसका सीधा-सा मतलब है कि आप अपने केस को लेकर के घबराएँ नहीं, आगे आएँ और हमें कम से कम वो मौका दें कि आपके केस के ऊपर हम ये सारी चीज़ें अप्लाई कर सकें और आपको हम सहायता दे सकें। So another common question is what happens if my T visa case or my U visa case is denied? And normally, when a case is denied, what will happen is immigration will send our law office a letter explaining the reasons for the denial. They usually give about a month for us to respond, it should be 30 days or sometimes 33 days to respond and file an appeal with immigration. And in some cases, we have up to 6 years to file a complaint with the government related to an application denial. So there could be different deadlines, but this is generally all done on paper. That means they should not be coming to anybody's house over a T visa or U visa denial because this is by mail to our office, by a letter with an opportunity to appeal, and generally not involving anybody physically going to court. अगला अति महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या होगा अगर मेरा केस डिनाई हो गया? अगर सरकार ने आपका केस डिनाई कर दिया, ऐसी स्थिति में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। एक सवाल आपके मन में आएगा कि क्या वो मेरे घर पे आ जाएँगे या मुझे चिट्ठी भेजी जाएगी? क्या मैं अपील कर सकता हूँ या मुझे कोर्ट में जाना पड़ेगा? तो उन सारी सवालों का जवाब हमें मिला है हेलन जी से और वो ये है कि ये सारी चीज़ें सिर्फ़ कागज़ पर होती हैं, जिसका मतलब है कि जो डिनायल आता है, वो हमारे ऑफ़िस में आता है। आपके घर पर किसी को नहीं आना चाहिए क्योंकि आपका जो वीज़ा है वो डिनाई हो गया है। हमारे पास समय होता है और हर केस का वो समय अलग-अलग होता है कि उस डिनायल पर हम अपील कर सकते हैं। उस अपील के लिए भी आपको कोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं होती है। वो अपील के लिए भी हमें कागज़ात तैयार करने पड़ते हैं और उसकी एक समय सीमा होती है जिसके आधार पर हमें वो कागज़ भेजने होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये तीनों चारों सवालों के जवाब हमने आपको दिए हों कि आपको इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। Now, another question we get is, do I need a power of attorney? This is a question that I get a lot, and it also comes up because there are a lot of local clinics or even notarios or notaries doing powers of attorney. And I think the idea behind it is that people want to have an emergency plan where someone can handle decisions for their family, like educational or medical decisions, as well as financial decisions if they are detained. Um, I've given longer presentations about this, but basically, a financial power of attorney is the kind of very powerful document that immediately gives someone else the right to do things like sell your house, take money from your bank account, file your taxes, or pay for insurance or cancel it. So it's a very powerful document.
Those documents can also be completed when someone is in a detention center or outside of the United States. But if you execute a financial power of attorney right away, you are giving somebody an opportunity where they are supposed to step in your shoes and only do things ethically for you. But many times, in my experience, when I used to see what would happen to people who had done powers of attorney and it didn't go well, a person with the power of attorney might end up doing some pretty bad things, like not obeying the law and sort of stealing or selling out from under people their properties. So it's not that a power of attorney that is a durable financial power of attorney isn't helpful ever, but I don't find them to be that helpful compared to other things like having a discussion with your family about what you want done if you're ever detained. If they don't know what your wishes are, then even having a power of attorney wouldn't help them do what you want them to do. So those family discussions about what you would want to be done are the most important thing, in my opinion. तो जो अगला बहुत आवश्यक सवाल है वो है क्या आपको या मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी की आवश्यकता है। तो पावर ऑफ अटॉर्नी को यहाँ पहले हम समझ लेते हैं। ये एक शब्द है जो कि कानूनी अधिकार देता है आपके द्वारा चुने हुए उस व्यक्ति को जिसको कानूनी रूप से यह अधिकार होगा कि वो आपके ना होने पर आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके पैसे के लिए, आपकी जायदाद के लिए वो आधिकारिक फैसले ले सकता है जो आप लेते हैं। इसलिए इस व्यक्ति का आपके द्वारा चुना होना बहुत आवश्यक होना चाहिए और ज़्यादातर पावर ऑफ अटॉर्नी के जो गलत इस्तेमाल होते हैं, वो हमने बहुत होते हुए देखे हैं हमारे अनुभव के आधार पर क्योंकि ये वो व्यक्ति होगा जिसको कि आप वो अधिकार देंगे जो कि आप किसी और को नहीं देना चाहते। लेकिन अगर आप वहाँ नहीं हैं, तो वो व्यक्ति उसका दुरुपयोग भी कर सकता है। जैसे कि आपकी प्रॉपर्टी आपकी बिना सहमति के बेच सकता है या ऐसी और बहुत सारी चीज़ें कर सकता है जो आप नहीं चाहते कि वो करे। तो ऐसी स्थिति में हम ज़्यादातर ये चीज़ें उसके लिए नहीं बोलेंगे आपसे कि जहाँ आपका पैसे का मामला है, जिसमें कि आपके पैसे के मामला, आपका ज़मीन, जायदाद ये सब चीज़ें हैं, वो आप उससे अलग रख सकते हैं। लेकिन जहाँ पर अगर आप डिटेन हो जाते हैं, अगर आपको पुलिस ले जाती है या आप किसी और की कस्टडी में हैं, तो किसी को घर में ये अधिकार होना चाहिए कि आपके आधार पर वो हमसे बात कर सके। या फिर वो अधिकार ले सके कि आपके बच्चों का क्या करना है, आपके परिवार का क्या करना है, कौन बात करेगा वकील से, कौन बात करेगा फ़ोन कॉल पर, कौन साइन करेगा, इस तरह की चीज़ें होंगी जो कि आपको जानना ज़रूरी है। तो ये एक बात है जो कि आपको क्लियर होनी चाहिए कि पावर ऑफ अटॉर्नी का होना ज़रूरी है, लेकिन उसके अलग-अलग कायदे और अलग-अलग कानून हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि आप ये जो निर्णय है, वो बहुत सोच समझ के लें। Another question we get is, what do I do if I can't get a passport and I have no identification? Oftentimes, people are worried about what happens if they get pulled over driving and they don't have a driver's license to show. Then what can they do? Now, in our town in Wilmington, North Carolina, there's a program called Faith Action ID, where regardless of your immigration status, you can get a community identification with your photo, name, and address on it that can serve as photo identification for things like identifying yourself to police without having to talk about immigration status. Those kinds of IDs can be used to open bank accounts as well as other functions. So the Faith Action ID program in our state is kind of special, and some other states might have that option as well. But for people who can't get a passport and have no identification, that doesn't mean you can't start an immigration case. There are actually waivers or ways to apply for immigration status even if you don't have a passport. And when immigration gets to a certain point in a T visa or U visa case, they typically issue work authorization and an identity document, which then may later help a person get a passport. सो जो अगला सवाल है कि मैं क्या करूं अगर मेरे पास कोई पासपोर्ट नहीं है या मेरे पास कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। तो नॉर्थ कैरोलिना में जो एक प्रोग्राम है जिसके बारे में हमें जानकारी है जिसके बारे में हेलन ने आपको बताया जिसका कि नाम है फेथ
एक्शन आईडी प्रोग्राम, जिसके तहत आपको एक आइडेंटिफिकेशन कार्ड मिल जाता है। और हो सकता है कि ये अलग-अलग राज्यों में भी इस तरह की योजनाएँ हों, क्योंकि हर राज्य की अलग-अलग योजनाएँ होती हैं। लेकिन यहाँ पर ये जानना ज़रूरी है कि अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं भी है, तो भी बहुत सारे वेवर्स हैं टी वीज़ा के अंदर, जो कि जब आपका टी वीज़ा अप्लाई हो जाएगा, उस समय आपको पासपोर्ट अगर नहीं भी है, तो भी उससे कोई परेशानी आपको नहीं आने वाली है। तो ये जो आपकी भ्रांति है कि अगर मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, तो मैं क्या करूँ? तो अगर आपको मिल सकता है कोई दूसरा आइडेंटिफ़िकेशन अलग तरीकों से, जिसके लिए अलग-अलग योजनाएँ हैं राज्यों में, तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो नहीं है आपके पास, तो आप हमें बताएँ, क्योंकि पासपोर्ट का ना होना, ये बिल्कुल साबित नहीं करता कि आपका टी वीज़ा अप्लाई नहीं किया जा सकता। तो आप अपने और ये हर केस के बारे में अलग-अलग होगा, कुछ लोगों के पास ये होगा, कुछ लोगों के पास ये नहीं होगा, या कहीं कुछ परेशानी वाली बात होगी, तो इसके बारे में आप हमें बताएँ, लेकिन उसके लिए रास्ते हैं, जिसकी जिसकी की सहारा लेकर के आपका वीज़ा अप्लाई किया जा सकता है। Now, specific to some of our clients from India, I just wanted to mention that please never bribe somebody or pay an agent who might bribe somebody to help you get a passport. We have definitely received reports of, and again, I don't know how it happens, but of Indian passport office workers or agents somehow connected to the US, I'm sorry, connected to the Indian consulate and passport office processing centers, getting passports for people who might not otherwise qualify, which makes no sense to me because India should be able to provide passports to their nationals here related to being Indian citizens, regardless of their immigration status. But that question comes up enough that I just want to say obviously, we always want to be truthful and ethical and never pay someone to get a passport if you've been told you're not eligible to do one. Instead, again, we want to use lawful means to get identification. थैंक यू सो मच फॉर एक्सप्लेनिंग दैट हेलन। सो यहाँ हम अपने भारतीय क्लाइंट्स के बारे में बात कर रहे हैं कि यहाँ पर इस बात का जानना बहुत ज़रूरी है, और ये भी हमारे अनुभव से हमारे सामने ये चीज़ें आई हैं। कई बार आप ज़्यादा पैसे दे के, किसी को रिश्वत दे के, गलत तरीकों से पासपोर्ट लेने की कोशिश करते हैं, जो कि गैर कानूनी है। और इस तरह के तरीकों को हम कभी भी आपसे नहीं बोलेंगे कि आप कीजिए। तो ज़्यादातर केसेस में जो पासपोर्ट ऑफिसेज़ हैं, जो काउंसलेट है, उसकी वेबसाइट पर आप जाकर के अगर पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है, तो आप रिन्यूअल के लिए डाल सकते हैं। आपको कभी भी ये ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा देके या रिश्वत दे करके किसी एजेंट को पैसा देके ये काम करवाना पड़े। तो अगर ऐसा कभी भी आप कुछ करवा रहे हैं, कृपया ना करवाएँ, क्योंकि वो गैर कानूनी है, और उसके लिए हम अपनी सहमति आपको कभी नहीं देंगे। हम सिर्फ़ आपको कानूनी तरीकों की बात बता रहे हैं कि अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है, तो कोई बात नहीं है। अगर किसी और आधिकारिक कानूनी रूप से वो पासपोर्ट आपको मिल सकता है, तो आप ज़रूर उसको अप्लाई करें। So, what do I do if ICE comes to my door? If ICE were to come to your home, just in general, I want to talk about people's civil rights. So, a person can choose to speak with an immigration officer if they wish to do so voluntarily. However, generally, if law enforcement were to come to the home and knock on the door, a person can maintain their right to remain silent. Also, they can request to see a judicial warrant. An ICE warrant may not be signed by a judge and may just be basically on immigration related papers. Those are not judicial warrants and are not the kind that require people to open the door generally. A judicial warrant from a federal court signed by an actual judge, that would be the kind of thing where responding to the warrant, for example, by stepping out of the house so that you can go into ICE custody if it's actually a judicial warrant, that may need to happen. So there's a lot of information out there online right now about what the difference is between an ICE warrant and a judicial warrant, but the basics of it are is that we're looking for a judge's signature on that. Now, let's say you're already detained, right? It's basically now the arrest is basically already happening or about to happen. If you have a T or U visa case, there are some things that
again, to our clients specifically, we often tell our clients that letting ICE know that you have a T visa or U visa case can be very helpful. And why is that? Immigration has come out with a new memo saying that ICE doesn't have to ask you if you have victims protection from deportation, but you can affirmatively tell them that you do. So you can say, I have US citizen children, or I have a pending U visa case, or I have a bona fide T visa case pending that has stayed or stopped my removal process while that T visa is pending. So remaining silent is absolutely an option. However, if you're at the point where ICE is trying to decide whether to arrest you or not, if you don't let them know that you may have a protective, confidential victim visa case, then they may not be able to have the information that they need to let you go. Again, general information, and this is something that may change over time, but that's what we're looking at currently. सो अगला अति आवश्यक सवाल है कि मैं क्या करूं अगर आईएएस ऑफिसर्स मेरे घर पर आ जाएं? तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि अगर आपके घर पे कोई भी दरवाज़ा नॉक करता है, तो आप उनसे ये बोल सकते हैं कि आप कृपया मुझे दिखाएँ कि आप खिड़की पे आएँ, जहाँ पर काँच का दरवाज़ा है, जहाँ से आप उनको देख सकते हैं। आपको दरवाज़ा खोलने के पहले एक जुडिशियल वारंट उनके पास होना चाहिए। आप तभी उनके लिए दरवाज़ा खोलने के लिए मजबूर होंगे या बाध्य होंगे और वो कानूनी होगा, अगर उसका जज साइन करता है। वारंट अलग-अलग तरह के होते हैं। एक होता है आइस वारंट, एक होता है जुडिशियल वारंट। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जुडिशियल वारंट की। तो उस पर अगर एक जज के साइन है तो आपको दरवाज़ा खोलना चाहिए और आपको दरवाज़ा खोलना पड़ेगा। लेकिन अगर वो वारंट उनके पास नहीं है, तो आप दरवाज़ा नहीं खोलें, तो ये आपके अधिकार क्षेत्र में आता है। और यहाँ पर हम उन बातों की चर्चा कर रहे हैं जो कि आपके अधिकार क्षेत्र में आती हैं। अगर मान लीजिए आइस ने आपको डिटेन कर लिया है या आइस ने आपको पकड़ के रखा है, क्या आपको उनके सवाल का जवाब देना ज़रूरी है? तो यहाँ पर उसका जवाब है कि आपको ये अधिकार है कि आप चुप रहें, मतलब ऑप्शन टू रिमेन साइलेंट जिसको बोलते हैं, तो वो आप अपना अधिकार इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा-सा एक और चीज़ आती है कि जनरल इन्फॉर्मेशन इसके पास होनी चाहिए। अगर उस समय वो ये डिसाइड कर रहे हैं कि उनको आपको अरेस्ट करके लेके जाना है या नहीं जाना है, और अगर आप उस समय कहते हैं कि मैं चुप रहूँगा, तो वो एक न्यायोचित तर्कसंगत बात नहीं होगी। तो हम अपने क्लाइंट्स को ये बताना चाहते हैं कि अगर आपका टी वीज़ा हमारे साथ चल रहा है या आपका यू वीज़ा हमारे साथ चल रहा है, कृपया आप उन्हें बताएँ कि आपके पास ऑलरेडी विक्टिम प्रोटेक्शन है, जिसका मतलब है कि आपका केस पेंडिंग है। अगर आपके पास कोई रिसीट नोटिस है उसका, वो आप उनको दिखा सकते हैं। तो ये उनका जानना ज़रूरी है, जिस समय वो बहुत अहम भूमिका निभाएगा कि वो आपके साथ क्या करेंगे। अगर आप उनको ये बताना चाहें कि आपके जो बच्चे हैं, वो अमेरिकन सिटिज़न्स हैं या अमेरिका के नागरिक हैं, तो आप उनको बता सकते हैं ये चीज़। अ, आपका जो केस है वो पेंडिंग है, ये बताना आपके लिए बहुत ज़्यादा उचित रहेगा, ऐसी अवस्था में अगर आपको डिटेन कर लिया जाता है। या फिर अगर आपको लगता है कि आपको कुछ नहीं पता कि आपको क्या बोलना है, तो वो अधिकार आपका है कि आप चुप रह सकते हैं। So another question is, can they really deport 11 million people? And we don't know the answer, but I do know that the last estimates that we've seen based on what amount of resources and officers and detention centers and bed space there are, this is not something that could be done overnight or necessarily over a 4-year period. Um, what I think that means is that, again, people who haven't prepared for an immigration application or who haven't gotten high quality legal advice should take this time to find out what their options are, whether they can remain in the United States or not, what the risks and benefits would be of applying for immigration status. अगला बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या 11 मिलियन लोगों को डिपोर्ट किया जा सकता है? इसका जवाब किसी के पास भी नहीं है। इसका जवाब हाँ या ना कुछ भी हो सकता है और उसमें समय भी लगेगा, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जानना ज़रूरी है कि अगर आप ऐसी स्थिति में हैं, जहाँ पर आपने अभी तक लीगल एडवाइस नहीं ली है, और लीगल एडवाइस भी बहुत तरह की मिलती है। यहाँ हेलन ने एक वर्ड मेंशन किया, हाई क्वालिटी लीगल एडवाइस, जिसको कि मैं एम्फसाइज़ करना चाहूँगी कि अ, अच्छी सलाह, एक रेप्यूटेड वकील से सलाह आप ज़रूर लीजिए कि आपके पास
इस देश में रहने के क्या-क्या लीगल ऑप्शंस हैं। और उसके बारे में आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं और वहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं कि केस बाय केस हर केस सेम नहीं होता, साधारण नहीं होता। तो इसलिए वो बहुत ज़रूरी है कि आप समय से वो मंत्रणा करें, वो कंसल्टेशन करें और अपने लिए वो सवाल का जवाब आप खुद वकील के मुँह से सुनें। So, what options do I have then to delay or prevent deportation? We're going to roll right back into oftentimes a humanitarian case is the relief that people are seeking, like, for example, T or U visa status. There are many other types of applications that may be filed. But again, this is going to come down to I know it's a frequently asked question, but you got to get a consultation to know what those options are. सॉरी हेलन। यहाँ पर जो अगला सवाल है वो है कि मेरे पास क्या ऑप्शन है कि मैं अपना जो डिपोर्टेशन है उसको थोड़ा-सा डिले कर सकूँ या मैं उसको रोक सकूँ। उसके लिए सबसे पहली और सबसे आखिरी एक ही सलाह है कि आपको किसी वकील से जो कि उच्च क्वालिटी का हो और आपको सही समय पर सही सलाह दे सके और उसके लिए आपको कंसल्टेशन लगेगा जो कि आपको डिले नहीं करना चाहिए क्योंकि कंसल्टेशन के लिए भी समय बहुत लगता है क्योंकि इतने सारे केसेस होते हैं। इसलिए हम आपसे ये गुजारिश करेंगे कि आप जल्द से जल्द अपना कंसल्टेशन बुक करें जिससे कि आपको वो सलाह दे पाए हमारे अटॉर्नी जो कि आपको इस समय चाहिए। So then another question is, if I have an advance parole travel document, may I travel on it? Now, if a case has been denied after advance parole was issued, then quite likely in those rare situations, advance parole travel permits would not be valid for travel if the green card case, for example, were already denied. But if somebody has a pending green card application, for example, based on T or U status, and they've received an advance parole travel document, then those documents are currently recognized as valid for people to travel. That said, our office for our clients wants our clients to let us know what is the reason for their travel on advanced parole. We want to double check the status of a pending case. We want to look back and see if our client has a specific criminal or deportation history, although they have a travel permit, that might make it more complicated for them to return after travel. And we also want to know about emergency contacts. So if something were to change in the case, or if there were some other type of emergency, we'd be able to get in touch with the person who's going to travel. अगला सवाल है कि क्या आप एडवांस पैरोल पर यात्रा कर सकते हैं? जिसका मतलब है कि आप इस देश से बाहर जा सकते हैं। यहाँ बस के 2 सवाल के 2 जवाब हैं। वो पहला ये है कि अगर आपका केस अप्रूव हो चुका है और उसमें कोई भी डिनायल नहीं आया है और अगर आपके पास रेबल एडवांस पैरोल है, तो आप यात्रा नहीं कर सकते। अगर वो केस डिनाय हो चुका है, तो आप कुछ नहीं कर सकते उसमें, चाहे आपके पास एडवांस पैरोल है भी। अगर आपका नॉर्मल केस पेंडिंग है और आपके पास ट्रैवल एडवांस पैरोल आ चुका है और आप यात्रा करना चाहते हैं, तो अपने क्लाइंट्स को हम ये ज़रूर बताना चाहते हैं कि हमें आप पहले सूचित करें कि आप कहाँ जा रहे हैं, कितने दिन के लिए जा रहे हैं, यात्रा का क्या कारण है आपका, जिससे कि अगर जब आप यहाँ से गए हुए हों, तो हमें ये पता चल सके कि हमें किससे बात करनी है अगर कोई नियम बदल जाए तो, या हमें कौन सूचित करेगा अगर आपको कोई सहायता मिले तो। आपकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है, उसमें हो सकता है कि कोई डिपोर्टेशन का मामला हो रहा हो पहले, जो कि हमें उस समय देखना ज़रूरी रहेगा जब आप इस देश से बाहर होंगे। तो इसलिए हम आपके साथ ये ज़रूर बताना चाहते हैं कि अगर आपका केस पेंडिंग है और आपके पास एडवांस पैरोल है, वो मान्य है, आप यात्रा कर सकते हैं, लेकिन इन सारी शर्तों के साथ कि आप हमारे ऑफ़िस से पहले एक तरह से सूचित करें, थोड़ी-सी परमिशन ले लें, हमसे उस केस के बारे में बात कर लें, तब आप यहाँ से बाहर जाएँ। So another question is, what happens if I get deported? If I come back under another name, will they know? So if someone was deported from the United States, we would certainly want to know whether there's an option to bring them back. And in some T or U visa cases, there and other types of cases, there are ways to return people legally to the United States.
I would never tell somebody to come back in a dangerous way under another name. Immigration absolutely could find out that a person has returned to the United States under an alias, and we've seen that happen before. That said, if you have already done that, again, get a consultation. Sometimes there are applications where those types of things can be forgiven or waived as well. तो जो अगला सवाल है वो ये है कि अगर मैं यहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाऊँ, तो क्या मैं किसी दूसरे नाम को इस्तेमाल करके वापस आ सकता हूँ? क्या यूएससीआईएस को ये पता चलेगा? तो इसका जवाब है कि हम आपको कभी भी आधिकारिक तौर पर या कानूनी तौर पर ये सलाह नहीं दे सकते कि आप किसी और दूसरे के नाम पर यहाँ पर वापस आएँ। हालाँकि कुछ सरकारी प्रावधान है जिसके आधार पर आपको अगर डिपोर्ट कर दिया जाता है तो आपको दूसरे देश से यहाँ पर वापस लाया जा सकता है। लेकिन हम कभी भी आपको नहीं बोलेंगे कि कोई आप भयंकर रास्ता चुनें या ऐसा रास्ता चुनें जो आपके लिए और आपके परिवार के लिए ठीक ना हो, गैर कानूनी हो, वो हम आपको कभी नहीं बोलेंगे। हालाँकि टी वीज़ा के नियम के अनुसार ऐसे प्रावधान हैं जहाँ पर आपकी कुछ चीज़ों को माफ़ किया जा सकता है। इसीलिए आपका कंसल्टेशन करना हमारे से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आपके पास क्या-क्या ऑप्शंस हैं अगर आप इस स्थिति में फँसे हुए पाते हैं अपने आप को। तो कृपया हमें फ़ोन करें और कंसल्टेशन आप अपना बुक करें। So, what are the top 5 things you can do right now? You guessed it, have an updated attorney consultation. It can take time to get on a calendar and have a quality consultation. It'll allow you to decide how much you actually want to invest if your choice is to try to remain in the United States. No attorney is going to advise you to remain unlawfully in the United States, but they can tell you the risks and they can tell you what your options are if you choose to apply for an immigration benefit. Also, if you have a pending case, you may want to find out if an expedite or an alternative option for immigration is available to you. There have been lots of changes in laws and regulations, and some of them have been very good. So, a consultation is an opportunity to confidentially provide an attorney with copies of your important documents and inform the lawyer of what to do if your emergency contact calls. Because as lawyers, we maintain confidentiality. So, if someone is detained, we don't just give out information, right? So if you haven't got a case that's pending and you haven't done a consultation, then you really haven't developed a connection or contact with a law office that will know what your defenses are or what your immigration options are, not just to advise you about maybe moving forward with an immigration application, but also to figure out what your defense would be if you were ever detained. सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ों पर हम आ जाते हैं और थोड़ा-सा रिकैप है कि अगर ये सारे सवाल आपके मन में हैं, आपको उसका उत्तर मिल गया है, तो अब जो टॉप 5 चीज़ें हैं, आपको क्या करनी है? तो सही बात है कि सबसे पहली चीज़ है कि आपको थोड़ा समय निकाल के कंसल्टेशन बुक करना है। आपको ये अपने मन में डिसाइड करना है, निर्णय लेना है, आवश्यक निर्णय है, कितना पैसा आप इस काम पर खर्चा करना चाहते हैं और अगर वो जो प्लान आपने सोचा है अपने लिए और अगर आपने कंसल्टेशन बुक किया है और आपको हमारे ऑफिस ने सलाह दी है कि क्या कर सकते हैं आपके केस में और अगर वो सलाह काम ना करे तो भी थोड़ा पैसा आपको अलग से चाहिए होता है कि अगर वो सलाह वर्क ना करे जो पहली बार दी गई है तो उसके लिए फिर दूसरे तरीके होते हैं जो कि आपको बताए जाएंगे जैसे जैसे आपका केस आगे बढ़ता जाएगा। अगर आपका एक पेंडिंग केस है हमारे पास तो ये जरूर मालूम करने की कोशिश कीजिए कि एक्सपेडाइट कर सकते हैं क्या उसको और एक्सपेडाइट का मतलब होता है कि आप उसको किसी तरह से जल्दी करवा सकते हैं उस काम को जो आपका केस ऑलरेडी पेंडिंग है तो ये आपको हमसे बात करने के बाद ही पता चलेगा। एक जो आपका कंसल्टेशन है वो आपके पास एक मौका होता है कि आप कॉन्फिडेंशियलिटी तरीके से मतलब गोपनीय तरीके से अपने अटॉर्नी को वो सारी जानकारी आप दें जो कि आपके महत्वपूर्ण कागजात हैं या आपके अटॉर्नी को ये बताएंगे कि अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि आपको डिटेन कर लिया जाता है आपको यहाँ से बाहर भेज दिया जाता है तो आपका जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट है जो आपके ना होने के
स्थिति में हमसे बात करेगा, तो आप ये सारी इन्फॉर्मेशन हमको ज़रूर दें। और हमारे पास ये एक प्रावधान है जो कि सभी लॉयर्स के पास होता है। ये एक क्लाइंट और अटॉर्नी का रिश्ता होता है, जिसके आधार पर हम आपकी इन्फॉर्मेशन कभी भी आपकी अनुमति के बिना किसी को नहीं दे सकते। Okay. So then the next one is talk to your family about your wishes. Again, that's one of the top 5 things I want people to do. What do you want to happen if you're detained? Some people don't want to spend money on a defense like that. They want to be returned at that point to their home country. Others want to fight tooth and nail, but if their family doesn't know what to do if they're detained or where important papers are or who their emergency contact is, then there's very little that they can do. And the communications are very hard to have when somebody's already been arrested. I look at it like, what if your house was on fire, right? We know everybody runs out of the house, but where do you meet up then? At the mailbox? At a neighbor's house? What do you want to do in a case like that? Would you rebuild or would you move? So, this is where we really want people to talk about their wishes. We want them to have already, of course, decided what they're going to do about legal options if possible. And we want them to make sure that somebody who they truly trust can figure out how to contact our office, which the best way to do it is to let us know in advance, right? Who your emergency contact is and what amount of information could be released, if any. We want them to make sure that that at least one close contact, it doesn't have to be family, but that emergency contact that's very well trusted needs to be able to get in touch with us. Or if there is no emergency contact, we want to know that. Some of our clients have nobody in this world really other than us that they can trust with their case and situation. And if that's the situation, then I also would want to know that so that we can plan for trying to do something confidentially without involving others. थैंक यू हेलन फॉर दैट इंफॉर्मेशन। अगली चीज़ है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में आप अपने परिवार से बात करें। आपके परिवार में आपके क्लोज़ फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके घर के वो ज़रूरी सदस्य हो सकते हैं जो आपके बारे में सब कुछ जानते हैं और जिनके बारे में आप विश्वास करते हैं कि वो आपके ना होने की स्थिति में आपके परिवार का ध्यान रखेंगे। तो अगर मान लीजिए आपको डिटेन कर लिया जाता है, तो आपके पास एक प्लान होना चाहिए। जैसा कि हेलन जी ने आपको बताया कि अगर घर में कभी आग लग जाए, तो क्या करना पड़ेगा? सबको बाहर भागना पड़ेगा। ये भी डिसाइड पहले से ही करना पड़ेगा कि भई उसके बाद हम कहाँ मिलेंगे। तो उस तरह की चीज़ है ये कि अगर आपको पता है कि ऐसी स्थिति आ सकती है, एक प्लान बनाइए, अपने परिवार से बात कीजिए कि ऐसी स्थिति में हमसे कौन बात करेगा, हमें कौन इन्फॉर्म करेगा, सारे सरकारी दस्तावेज़ कहाँ रखे हुए हैं, तो जो सारे डॉक्यूमेंट्स हो आपके पासपोर्ट, लीगल डॉक्यूमेंट्स वो सब कहाँ रखे हुए हैं और वो हमें कौन देगा या फिर हमसे उसके बारे में करस्पॉन्डेंस कौन करेगा। क्या उस समय आप कोई अटॉर्नी हायर करना चाहेंगे? जिसका मतलब है कि कुछ लोग कहते हैं कि ठीक है आपने मुझे बाहर भेज दिया, अब मैं जा रहा हूँ अपने घर में जहाँ से मैं आया था और मुझे इसमें और पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है और मेरे पास पैसा नहीं है और खर्चा करने के लिए। एक स्थिति ये हो सकती है। ठीक है, वो स्थिति हमें समझ में आती है। कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे कि नहीं मैं अपना अधिकार इस्तेमाल करना चाहता हूँ, मुझे यहाँ रहने का अधिकार है, मेरी ज़िंदगी यहाँ पर है, मेरे बच्चे यहाँ पर हैं, मेरा परिवार यहाँ पर है और मुझे यहाँ पर एक वकील दो, तो ये सारे डिसीज़न्स कौन लेगा क्योंकि आप तो वहाँ नहीं होंगे। तो ये सब चीज़ों के बारे में जानकारी के लिए आपको एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट का होना बहुत ज़रूरी है। एक एग्रीमेंट आप साइन कीजिए अपने उस परिवार के सदस्य के साथ में जो कि ये बताए कि अगर आपको डिपोर्ट कर दिया जाए तो ये सारी चीजें आप उनको बता के गए हैं जिससे कि ये समझ में आए कि हाँ ये सरकारी तौर से चीजें बताई गई हैं किसी को और वो आपके घर में आपके पति पत्नी बच्चे रिश्तेदार मित्र कोई भी हो सकते हैं जिससे कि वकील को ये उस समय जानकारी पता चले कि आप अपने केस को लड़ना भी चाहते हैं या आप खत्म करना चाहते हैं नहीं लड़ना चाहते। कई बार एक्चुअली लोगों के पास हमारे अलावा और कोई इमरजेंसी कॉन्टैक्ट ही नहीं होता। मतलब परिवार में ज़्यादा लोग नहीं होते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा भी है, तो आप कृपया हमारे ऑफ़िस को ये जानकारी दें, जिससे कि हमें ये पता हो कि आप किसको अपना इमरजेंसी कॉन्टैक्ट रखना चाहते हैं। और
अगर आपने किसी को अपना इमरजेंसी कॉन्टैक्ट बनाया है, तो अपने अटॉर्नी को ये बताना ज़रूरी है कि वो कौन है आपका रिश्ते में। और कहीं वो आपकी स्थिति का नाजायज़ फ़ायदा तो नहीं उठाएगा, ये जानना भी ज़रूरी है। और आपके परिवार को पता होना चाहिए कि कभी ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में आपका जो परिवार का सदस्य आपने जिसको कि चुना है आपके निर्णय के लिए वो कौन है। तो ये सारी जानकारी आपके परिवार में पता होनी चाहिए। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि अब इन सब चीज़ों पर अभी से काम करना शुरू करें, क्योंकि अक्सर जब कोई इमरजेंसी आती है तो आपके पास एक प्लान होना अति आवश्यक है। All right. Number three, organize your papers, originals and scans. So if you don't have an immigration lawyer at all, especially in that situation, you need to find out about birth records, passports, marriage and divorce documents, custody papers, tax filings, bank records, medical records, and who's going to have access to those documents. I listed out some here in our little slideshow, but I did that because if I was seeking an immigration bond for somebody, I would want those items if possible. If I'm filing an application for T visa status, guess what? Probably other than the taxes and bank records, everything else on that list is something that almost always goes into a T visa application. So no matter what kind of application you're going to be filing with immigration, whether it's a deportation defense type of application, or for bond, or a benefits type of application like a T or U visa, gosh, these papers are so important. And if you only get to the point where you've done a consultation, at least then somebody has got scans of them that can maintain them confidentially, like a law office, but also they are typically used in the case that a person would proceed with going forward. ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी जानकारी है हमारे सभी क्लाइंट्स के लिए कि अपने कागज़ों को, सरकारी दस्तावेज़ों को, ईमेल्स को, ओरिजिनल्स को और उनके स्कैन्स को आप सही जगह पर, सुरक्षित जगह पर रखें, और वो कोई भी हो सकती है। और कौन-कौन से कागज़ों की हम बात कर रहे हैं? यहाँ बात कर रहे हैं हम आपके बर्थ रिकॉर्ड्स की, पासपोर्ट्स की, मैरिज और डिवोर्स डॉक्यूमेंट्स की, कस्टडी डॉक्यूमेंट्स की, आपके टैक्सेस की, बैंक रिकॉर्ड्स की और मेडिकल रिकॉर्ड्स की। ये भी डिसाइड करना आपके लिए ज़रूरी है, सॉरी, कि ये जो दस्तावेज़ हैं वो किसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं जो उनको देख सकता है, क्योंकि ये सारी जानकारी होती है इस दस्तावेज़ों में आपके, टैक्सेस में, बैंक्स के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड व्यक्ति होना चाहिए जो भी आपके इन सारे डॉक्यूमेंट्स को देख सकता है। ऑर्गेनाइज़ करके आप इनको रखिए अपने घर में, किसी को अगर आप चाहें तो एक कॉपी दे सकते हैं। और ये अगर हम आपका केस पेंडिंग है तो आपके टी वीज़ा के लिए, या जैसा हेलन ने बताया कि बॉन्ड ऑर्डर रिलीज़ करने के लिए आपको ये सारे कागज़ हमें चाहिए होते हैं। तो उस समय ये चीज़ें अति आवश्यक हो जाती हैं कि वो कागज़ आपके पास हों, आपके द्वारा चुने गए व्यक्ति के पास हों, जिससे कि जब वो समय आए, अगर वो आ जाए, तो वो सारे कागज़ आपके पास एक जगह में सुरक्षित रूप से होने चाहिए, ओरिजिनल भी और स्कैन भी। Another one, get your vaccines updated. So many reasons for this. I understand that right now, for green card cases, they're not necessarily requiring the COVID vaccine or booster. However, that was a long time requirement in the past. Also, related to other types of applications, not necessarily green cards, there's a concept of being medically ineligible or inadmissible due to not having vaccines updated in accordance with the Center for Disease Control recommendations. On top of that, getting your vaccines can be a healthy thing generally. It also means that you may have more documentation of your presence in the United States. And finally, if someone were detained, I would be worried about them being in a detention center where those vaccines may be life saving for them and they don't have them. So, lots of reasons, whether it's to have documentation of your physical presence in the United States, to protect your health or that of others, or to remain medically admissible or eligible for certain immigration benefits. My general opinion is that vaccines can be very helpful for that.
गेट वैक्सीनेटेड या आपके जो वैक्सीन्स हैं, वो कोई भी वैक्सीन्स हों, खाली कोविड बूस्टर्स की यहाँ पर हम बात नहीं कर रहे हैं। जो भी वैक्सीन्स हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकती हैं और आपने वो नहीं लगवाई हैं, कृपया उन्हें लगवाएँ। उसके बहुत सारे कारण हैं जो हेलन ने आपको बताए कि पहला तो है आपके स्वास्थ्य की सुरक्षा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपके स्वास्थ्य का दायित्व आपके ऊपर है। अ, दूसरी चीज़ है मेडिकल इनएडमिसिबिलिटी क्योंकि कई बार अगर आप वो वैक्सीन्स नहीं लगवाते हैं तो आप इस देश में आने के लिए मेडिकली ही सुरक्षित नहीं है और उसको हम बोलते हैं मेडिकली इनएडमिसिबिलिटी। जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर मान लीजिए आपको डिटेंशन सेंटर में रखा जाए और आपने वैक्सीन नहीं लगवाए हैं तो आपकी सुरक्षा को वैसे भी खतरा है क्योंकि वहां पर अलग-अलग तरह के अलग-अलग जगह से लाए गए लोग होंगे जिनको बहुत सारी चीजों की परेशानी हो सकती है और आपके स्वास्थ्य को उससे लेकर के खतरा हो सकता है। इन सारी चीजों से बचने के लिए हम आपको ये सलाह जरूर देंगे कि आप अपने सारे वैक्सीनेशन समय से लगवाएं। कोविड का जहां तक सवाल है तो कोविड की अगर आपने शुरू की डोजेस लगवाई हैं, अब उसके बूस्टर्स लग रहे हैं, वो आप जरूर लगवाएं अपनी सुरक्षा के लिए। Top 5 things, breathe. I know this is scary. सो अंत में आपको हम बताना चाहेंगे जैसा कि हम सब सांस ले रहे हैं, सांस लेते रहिए। कई बार हम सांस लेना भूल जाते हैं और हम बोलते रहते हैं हमारे पास समय नहीं है। हम सोचिए या सांस लें। हम आपसे कहेंगे पहले सांस लीजिए, फिर सोचिए। We care so much about immigrants in this country and we want to help. I know that it is hard, but working through things step by step, taking a breath, trying not to worry about everything in the world all the time, every single day, and working with what you can do, what you can control, what's right in front of you is the way to go. I think when we have anxiety, it's really all about the future. And one of the best ways to deal with anxiety is to take real actionable steps towards trying to work on your immigration status as opposed to just ignoring it or having catastrophic feelings about it. So we know that it's scary, but take a breath, work through things step by step, look for solutions, and I think you will feel better, and so will we. Thank you so much for listening today, and Samya for your wonderful interpretation. थैंक यू हेलन। सो जैसा कि आपको आज हमने इतनी सारी चीज़ों के बारे में बताया है जिसका कि सीधा-सादा एक समरी है कि ज़िंदगी में हर समय हर चीज़ के बारे में आप चिंता नहीं कर सकते, करनी भी नहीं चाहिए आपको। एक-एक करके आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करें। हमने बहुत सारी सवालों का जवाब देने की कोशिश की है क्योंकि हम और हमारे लॉ फर्म आप सबके इमिग्रेशन स्टेटस के लिए बहुत चिंता करते हैं। हम चाहते हैं कि आप सुरक्षित हाथों में रहें और इसलिए हम आपको ये बार-बार सुझाव दे रहे हैं कि साँस लेते रहिए, सही चीज़ें करते रहिए, प्लानिंग करते रहिए, कंसल्टेशन कीजिए और उम्मीद करते हैं कि आपसे हमारी जल्दी मुलाकात होगी।